elect representatives to the 200-member state legislative assembly. The Congress hopes to retain power while the Bharatiya Janata Party aims to unseat the grand old party, keeping up the state's tradition of rotating parties every 5 years. The Congress is focused on highlighting the Ashok Gehlot government's progress card and welfare schemes, while the BJP is targeting the ruling party with allegations of corruption, law and order situation in the state, and also alleged infighting within the Congress. Voting has begun. And for more on this, we have our colleague Harsha Chandmani, who is reporting live as the voting begins for Rajasthan polls. Harsha, could you please tell us, out of the 200 constituencies, one constituency has been held back because of the death of the candidate over there. But in the rest of the constituencies, if we talk about it, which ones are coming up as the most important and most highlighted constituencies where the candidates are really in attention in the Rajasthan Assembly polls? So let me tell you, Nikita, that right now from where I'm reporting is the Civil Lines polling booth C scheme. And right now this is the very important polling booth and the VIP polling booth, because Sachin Pilot, the former Deputy CM in Rajasthan government, is coming to vote here. And the voting has already begun. Let me show you. There is a huge line of voters who have arrived from 7 a.m. only. And this Rajasthan Assembly election is very interesting. 199 Assembly constituencies is going to vote today. And today is a very important day. And if we talk about the VIP seats, Nikita, there are several VIP seats from Tonk to Sardarpura to Churu to Jotwada to Vidyadhar and to also Nathdwara and the Jodhpur Assembly constituency. There are several constituencies which are the VIP constituencies, and if we talk about, they are the constituency from where the Vasundhara Raje represent, and also the constituency of Ashok Gehlot, and both of them have never lost their constituency since the time they contested. So this election is going to be very interesting if we talk about Sachin Pilot, because right now from where I am reporting is the polling booth where Sachin Pilot will cast his vote at around 7:30 a.m. and we are all waiting for him to arrive and cast his vote, because this time again in 2018 he contested from Tonk Assembly constituency. He won with a margin of almost 54,000, and this time again Congress has fielded Sachin Pilot from Tonk Assembly constituency only, which is again one of the major and the VIP constituency in this Rajasthan Assembly election. And if we talk about how the high voltage campaign has been, and if we talk about the high voltage campaign from BJP to Congress, they all have been speaking about the welfare scheme. On one side, BJP has continuously lambasted and attacked on the Congress party by stating that they have always been doing appeasement politics in the state of Rajasthan, and they have not fulfilled the guarantees they promised to the citizens of Rajasthan in the year 2018. And BJP is also hoping to dislodge the Rajasthan government this time from the Rajasthan, and on the other side Congress is assured and hopeful that they are going to break the record of rotation jinx here in Rajasthan. And both the parties and have the, if we talk about the election campaign and the high voltage campaign which both parties did, both have actively and massively attacked on each other as well. And they are amongst the several VIP constituency. One, we are also looking at the CP Joshi, the BJP president who is contesting, also opposition leader Rajendra Rathore and Rajavardhan Rathore seat Jotwara Assembly constituency, the constituency from where Diya Kumari is fielded this time, the Alwar Assembly constituency Tijara from where MP Balaknath this time is contesting. These are the very important seats, and this time BJP has fielded majority of MPs from different assembly constituencies as well, hoping to take over the Rajasthan and to also dislodge the Congress government from Rajasthan. I'll again pan my camera towards the voters and we'll try to speak to some of the voters exactly what are their thoughts, and now when they are here to vote, exactly what they are thinking about. मैम, आप लोग आज पहुंचे पोलिंग बूथ पे, हम देख रहे हैं सुबह का मतदान शुरू हुआ है, सबसे पहले आप लोग कतार में लगे हैं। आप लोग कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं, क्या जहन में रहता है जब वोट कास्ट करने जाते हैं?
और मोदी जी की कैंडिडेट और पार्टी दोनों ही देखते हैं सभी कटारी है वोट करने के लिए। हाँ, पार्टी भी। हाँ, बात दूसरे कई सारे नाम हैं। राजस्थान में बीते 5 वर्षों में जो तमाम चीजें वादे किए गए, आपको लगता है वो तमाम जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं 5 साल में? नहीं हुए हैं ना, इसीलिए देने आए हैं। और हमने देखा महिलाओं का मुद्दा बहुत प्रबल था, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहने लगी कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है राजस्थान में। महिलाओं की सुरक्षा का दावा और वादा बीजेपी ने भी किया है इस बार। तो इस बार देखते हैं, बीजेपी को देखते हैं कि वो अपना वादा कैसे पूरा करती है। सर, हमने देखा इस पूरे चुनाव में प्रचारों में रेवड़ी पॉलिटिक्स का जिक्र बहुत हुआ। 7 जो कांग्रेस की फ्रीबीज हैं, जो गारंटीज हैं, जो 7 गारंटी की बात वो कर रहे हैं। आपको लगता है बीते 5 सालों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है? जो वादे किए वो पूरे किए सरकार ने? मैडम, चिरंजीव योजना बहुत पब्लिसिटी की इन्होंने। एक भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो लाइन लगती है, एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीव योजना के पालन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि जो आप मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए वो बीते 5 वर्षों में बहुत से हैं जो पूरे नहीं किए गए? खोखले हैं, सारे खोखले हैं। मोबाइल देने की बात की, मेरे को यहाँ 10 महिलाएं हैं, एक से बता दीजिए कि इनको मोबाइल मिला? 1% भी किसी को मोबाइल नहीं मिला। नहीं, मोबाइल मिले हैं, पर इन्होंने जो भी काम किया है कार्यकाल के आखिरी के 4-5 महीनों में करा है, जो सिर्फ वोट को देखने के लिए करा है, जो सही नहीं है। आपको लगता है कि हमने यहाँ पे बीकानेर में एक चीज़ देखी, हमने जयपुर में प्राइम मिनिस्टर का रोड शो देखा, तो जो कैरिज्मा है इस बार भी जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के कंधों पे लड़ रही है बीजेपी? आपको ये लगा? नहीं मैडम, देश के लिए लड़ रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए देश के लिए हम वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो मैम, मोदी इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान के चुनाव में? देखते हैं। सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल रहेगा। आज राज्य से पहले देश है और पीएम में मोदी हमारे देश के नेता हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वो जो हम कहें कि मोदी करिश्मा, मोदी चमत्कार है, वो बरकरार, वो इस चुनाव में असर दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। और जनता मोदी जी से बहुत प्यार करती है और जनता मोदी जी को वोट देगी। और एक और बात, राष्ट्र के लिए मोदी जी को वोट देंगे हम लोग। और एक और बात, आप लोग अपना कैंडिडेट देखते हैं या फिर बड़े स्तर पे आप लोग पार्टी देखते हैं? पार्टी देखते हैं। आज हमने देखे कैंडिडेट्स कई सारे निर्दलीय भी जीत के आए हैं, पर न तो उनके क्षेत्र में विकास है, न काम पहुंच पाता है। और खाली एक क्षेत्र के विकास से राष्ट्र नहीं आगे बढ़ सकता। राष्ट्र के लिए तो पार्टी को देखना पड़ेगा। सर, आप क्या मानते हैं, क्योंकि सुबह से आप लोग कतारों में लगे हुए हैं, बहुत ही जागरूक मतदाता आप लोग हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे आकर के सबसे पहले वोट कास्ट करना, ये भी एक, क्योंकि कहा जाता है कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, बढ़ चढ़ के मतदाता पहुंचे। तो आज अपने जब मत का प्रयोग करेंगे तो क्या चीज़ें जो जहन में आपके रहेंगी? मैम, जहन में विकास है, हमें देश का विकास देखना है। और मोदी जी जिस तरह से देश को आगे लेके जा रहे हैं, पहले वर्ल्ड वाइड उसके अंदर कुछ भी नहीं था, आज मोदी जी सब जगह मोदी जी हैं, तो उन सबको देखते हुए हमें वोटिंग करनी है। और हम चाहते हैं कि हमारे शहर का भी विकास उसी तरह से हो। जो कहा जा सकता है कि अर्बन सेक्टर में मोदी मैजिक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100% मोदी मैजिक बहुत ज़्यादा है। मैम, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात बहुत ज़्यादा रही। बीजेपी ने तमाम अपनी रैलियों में ये बात कही है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन ये राजस्थान में बहुत प्रबल है और इसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। आप क्या कहेंगी, बतौर महिला 5 सालों में आप कैसे आंकती हैं? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा लीडर कौन है उस चीज़ के लिए, क्योंकि कौन हमें सुनेगा उस चीज़ के लिए। खाली इलेक्शन के टाइम पे सब लोग बहुत प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन बाद में अगर हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाते हैं तो कोई ऐसा होना चाहिए चेयर पे जो हमारी बात सुने। उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटिंग करना, उसके लिए आई एम हियर। आपके इलाके की परेशानी क्या है? आप जब मत डालने जाएंगी तो कौन सी चीज़ें जो आपके जहन में रहेंगी? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि मेरे इलाके की परेशानी ये है कि जमनालाल बजाज मार्ग पे आज 5 साल से फ्लाईओवर बन रहा है और वहाँ पे कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ पे बाहर हमेशा मीटिंग्स होती रहती हैं, धरने होते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, देयर इज़ नो वन टू लिसन। वहाँ पे वो लोग रास्ते रोक देते हैं, घंटों के लिए रास्ते रोक देते हैं। यहाँ पे किसी को मेडिकल वीआईपी क्षेत्र में दूसरा वहाँ पे बंद कर देते हैं, घर से बाहर से बली फंटे लगा देते हैं। मैंने लिटरली वहाँ पे जितने नेता आए थे उन लोगों से भी बात करी थी आगे से आगे कि मैंने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी मदर इन लॉ बीमार है, कोई भी बीमार है, बट कोई नहीं सुनता। उसी समय सुनेंगे सॉरी या कुछ इस तरह से करके। उस समय सारी चीज़ें इलेक्शन के अराउंड ही होती हैं। नहीं, इलेक्शन के अराउंड नहीं, ये 5 साल से हो रही हैं।
लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कोई इस तरह का आए यहाँ पे कि जो इस तरह का स्ट्रांग हो कि मैं बोलूँ और फिर वो लोग सुने हम लोगों की प्रॉब्लम को। ऐसा नहीं है वहाँ पे वो पूरा वीआईपी एरिया है, सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन कोई भी स्टेप नहीं ले रहा उसके लिए। तो So, Nikita, you can clearly see what's in the mind of the voters as they have come here to cast their votes early in the morning.